एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपिका एस लिंगडा। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। यमनाम खेमचंद सिंह ने बुधवार को मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिसे राज्य में लगभग 1 साल से चल रहा राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया। उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल अजय भल्ला ने इम्फाल के लोक भवन में आयोजित समारोह में दिलाई। ये राजनीतिक बदलाव 3 फरवरी को हुए एक बड़े घटनाक्रम के बाद हुआ, जब 45 से अधिक एमएलएस ने एक मत से मैतेई समुदाय के वरिष्ठ नेता सिंह को बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता और नई सरकार का चेहरा चुना। And consciously discharge my duties as the Chief Minister of the State of Manipur, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and law without fear or favor, affection or ill will. I, Yumnam Khemchand Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under the consideration or shall become known to me as a Chief Minister of the State of Manipur, except as may be required for the due discharge of my duties as such Chief Minister. Chief Minister, Minister Dobra. मेघालय हाईकोर्ट ने मंगलवार को शिलोंग के 29 कैंटोनमेंट में लगी आग से प्रभावित निवासियों को अस्थायी शेल्टर बनाने की अनुमति दी, जबकि विवादित भूमि पर किसी भी स्थायी निर्माण को स्पष्ट रूप से मना कर दिया। यह आदेश उन निवासियों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद आया, जिनकी झोपड़ियां 16 जनवरी 2026 को आग में जलकर नष्ट हो गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि घटना के बाद से वे कठोर सर्दी में भी खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। कोर्ट ने कंटोनमेंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को 7 दिन के अंदर स्पॉट इंस्पेक्शन करने का निर्देश दिया। सिर्फ सत्यापित आग पीड़ितों को ही मौसम प्रूफ अस्थायी शेल्टर बनाने की इजाजत होगी। इन निर्देशों के साथ हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। मेघालय राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कोंग यामोन सीएम ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड्स देने के सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे एक ऐसा कदम बताया जो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। उनका कहना है कि ये फैसला लड़कियों की गरिमा, स्वास्थ्य और बिना रुकावट शिक्षा को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन सुविधाओं की कमी के कारण कई लड़कियां चुपचाप परेशानी झेलती है और कई बार स्कूल छोड़ने पर भी मजबूर हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में मेंस्ट्रुअल हाइजीन को समानता और शिक्षा के मूल अधिकारों से जोड़ा है। Is always a good move, and it's something that is like should be done, I think, far much earlier than now. But anyway, it's a step in the right direction, and it's needed. So at least it's filtering up the issues and problems that women face, girls, especially in the rural areas and even in the urban areas also. So yes, that's a good positive move. But then in terms of implementation, in terms of it filtering down, as usual, as any law, it takes a long time. One, it needs the political will, it needs commitment from
from administrators, from people who are funding. It needs commitment from people, from the people themselves. Are they willing to ask for it? If it's a right, then one should be more proactive. And I think they need all the help that they can, especially in the rural areas who do not have a voice. So we need NGOs, we need maybe commissions, we need, everybody everywhere. We need the media to be more involved so that one, that people will be aware that this is their right. And two, also to have a conversation in the public, about the things that matter, because what has come out of this, and we can only name a few, is that women and girls, they do face these issues. Like it's before, when a woman has to bear, a girl has to bear the pain, the shame, or whatever, the discomfort, of having your periods. But they don't talk about it. They can't talk about it. They can only talk about it with their friends, perhaps not even with their parents. But then many times it's difficult for them to go to school. And if they're not using sanitary pads, those old days where they use whatever traditional methods, that becomes difficult. And if water is not readily available, that is a big concern. So I would say that a lot of girls, I think they do drop out also because of these issues, because they don't want the hassle of, like, every month, they have to drop out of school for a few days. So the motivation to continue their studies also is gone. That is one of the things. Then for a woman, when she goes to have a higher education, or goes to work anywhere also, that is also, I mean, which boss will kind of be sensitive to the fact that I want to take leave today because I'm not feeling well. I have cramps, I have menstrual pain, I have this and that. So it's difficult for a woman to voice because it's such a private thing also, no? But I'm happy that today's younger generation, they do talk about these things, like both men and women. But the older generation is like a taboo. शिलोंग के ऑल सेंट्स हॉल में एक रंगीन बुक फेयर का आयोजन हुआ, जिसमें हर उम्र के पठाकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस फेयर में एकेडमिक बुक्स, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के गाइड्स, नॉवेल्स, बच्चों की सहायता और रीजनल लिखाव शामिल रहे। आयोजकों ने बताया कि इसका उद्देश्य रीडिंग कल्चर को बढ़ावा देना है और सस्ती कीमत पर क्वालिटी किताबों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अभिभावकों और शिक्षकों ने इस पहल का स्वागत किया। But the books that I have read, like, they have improved the way I think a lot. And yeah, I would say, like, almost every influential person, like, every one of them, they read books. Every one of them, they make a habit of reading books. So just gaming and spending time only in entertainment, it will not develop you in any way. So having a book to read and having your mindset, uh, uh, mindset, making it broad. So I think that will help in the way that people will be surprised. Yeah. So I would suggest everyone, yeah, whenever you have time, to take a book and to have just even a little bit, just one chapter per day, one pages per day. Even that will help you in many ways. Huh? The way you live your world, the way you think about life. So especially for me, like, how I live my life now is, it has books have a lot of influence on me. So in that way, I would encourage everyone, yeah, to take a book and maybe read some. It will help them a lot. Yeah. मेरा नाम आमिर जैन है। And so regarding the books, यहाँ पे आपने ये जो मतलब fair लगाया है, so what kind of response are you expecting? And secondly, what is your motive behind it? Excuse me. Different when it comes to, I mean, if you have to compare between reading and actually watching movies, right? So all these books that I've taken up also, they're all, they have movies that are based on these books. But then I feel reading, it opens up your imagination and it lets you really go deeper into reading compared to watching a movie. You can just forget about that movie later, no? Yeah. In today's world, children are greatly distracted with the different kind of social media gadgets and things. So I think as parents, they should take the responsibility of teaching children
And here at this exhibition, I don't know who it is organized by, but they have some very good collection of children's books. I have 2 grandchildren, so I'm just coming here to pick up some books for them. There are activities also which will engage the children, and I think it starts at home. So parents should come here, as young parents come take books, activity gadgets, and give it to the children, and avoid them watching TV or tablet or phone when they eat. Read. I think reading is very, very important, and encourage the children to read as well. Give them good books for reading, so that they develop their knowledge, their skills, and also they are more they know what is happening in the world. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यूजीसी से जुड़े मुद्दों का समर्थन के बहाने सवर्णा समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की जाने की खबरें सामने आई है। मौके पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हस्तक्षेप करते हुए घटना को रोक दिया, जिससे आगे बढ़ने से हालत संभल गए। भाई मार बहुत तगड़ी हो जाएगी। अरे उसको पटना बिहार में मंत्री रामकृपाल यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संसद नियमों और प्रक्रियाओं के तहत ही काम करती है और सदस्यों को उचित बहस के जरिए मुद्दे उठाने का मौका दिया जाता है। राहुल गांधी जी सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। सदन को बाधित करने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। अनाप शनाप बात आप सदन में रखिएगा, कोई याद दे देगा आपको बहस करने के लिए। नियम कानून से चलता है ना। किश्तवाड़ इनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने सख्त संदेश देते हुए कहा है कि पाकिस्तानी आतंकियों को उन्हीं की ठिकानों में ढेर कर दिया जाएगा। इस क्षेत्र में अभी भी ऑपरेशंस जारी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक दर्दनाक घटना में 3 नाबालिग बहनों के 9th फ्लोर से कूदकर आत्महत्या करने की खबर है। पुलिस के मुताबिक ये घटना उनके माता-पिता द्वारा अत्यधिक ऑनलाइन गेमिंग पर एतराज जताए जाने के बाद हुई। मामले की जांच जारी है। उन्होंने लिखा था बच्चों की रेटिंग मैंने पहचान ली थी। ये लिखा था पापा सॉरी, हम कोरिया नहीं छोड़ सकते, कोरिया हमारी जिंदगी है, कोरिया हमारी जान है और आप हमें नहीं छोड़ा सकते। आई एम सॉरी, हम जान दे रहे हैं बस। और सुसाइड नोट मैंने अभी देखा जस्ट उनके पास। सर बहुत बुरा हुआ है, ऐसे किसी के बच्चे के साथ ना हो। मैं कहूँगा सब बच्चे अपने गेम खेलना छोड़े, सब कोई भी माँ अपने बच्चे को गेम ना खेलने दें। बस गेम में कब कौन सा टास्क हो जाता है ये नहीं पता लगता, हमें खुद नहीं पता लगा जी। ये बताते तो वैसे भी घटना ही ना होती। ऐप कोरियन वालों ने सेंड करा था लिंक, हमें नहीं पता। बाकी पुलिस वालों के पास फोन है, उन्हें सब डिटेल पता। दूसरा, अगर ये पता होती कि क्या टास्क दे रहे हैं, मैं वो गेम नहीं खेलने देता जी उन्हें। ये नहीं पता जी, ये कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये रिकॉर्ड होता तो मैं गेम खेलने नहीं देता, बताता हूँ। इतने तो नॉलेज हमें भी है गेमों की, सारी चीजों की हमें पता ही था। वो गेम में हमें तो आज फॉरेंसिक टीम से पता लगा वो गेम में थे। हम तो सोच रहे कोई खेल रहे, चलो कोई बात नहीं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के पास भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ये बंदोबस्त स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की सुनवाई और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एपेक्स कोर्ट में पेश होने से पहले किया गया है। आपको हम दिखा रहे हैं जो
मार्केट एक्सपर्ट अनिल शाह ने कहा कि इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा के बाद शेयर बाजार से सकारात्मक शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि निफ्टी ने महत्वपूर्ण टेक्निकल लेवल पर पार कर लिया है, जिससे आने वाले सेशंस में और तेजी से संकेत मिलते हैं। मैं ये ट्रेड डील की वजह से तो आज ट्रेड डील आई तो मार्केट में एक अच्छी सी मूवमेंट आई और ऊपर की साइड तेजी की तरफ मार्केट खुला और अभी वहीं पर ट्रेड कर रहा है। अभी मार्केट ऐसा लग रहा है कि जो टेक्निकल एक लेवल था 25,200 निफ्टी का डेली मूविंग एवरेज, उसके ऊपर तो मार्केट आ गया है और अभी 25,800 जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर टेक्निकली मैं बात करता हूँ पहले तो वही इसके ऊपर निकलेगा तो बाजार में अच्छी खासी तेजी आने की संभावना है। लेकिन थोड़ा एक कंसर्न भी है कि जो बजट में जो एससीडी का जो प्रावधान किया है ज़्यादा, तो उसकी इम्पैक्ट अप्रैल से क्या आती है, क्योंकि 1 अप्रैल से स्टॉक मार्केट में एससीडी जो ट्रेडिंग जो यानी कि जो मार्केट में जो डेप्थ लिक्विडिटी गायब नहीं हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा गैप रहेगा। क्योंकि एससीडी आप देखो तो हर साल पिछले 10 साल में एससीडी को बढ़ाया ही गया है, लेकिन ये बार भी एससीडी को सबसे ज़्यादा बढ़ाया है। तो वो भी लग रहा है कि अप्रैल से इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, क्योंकि देखो एफपीआई वाले भी क्या सोचते हैं कि भाई मार्केट में इंडियन मार्केट में डेप्थ लिक्विडिटी नहीं होगी तो इससे वो असर क्या पड़ेगा। बाकी बाजार फंडामेंटली मजबूत है, तो बाजार में आने वाले दिनों में 2-5 साल के लिए तेजी तो आने वाली है, तो इसके लिए बाजार ज़्यादा नहीं घटेगा। लेकिन मार्केट में देखो अच्छे अच्छे लोगों को लाना है तो उसके लिए मार्केट में डेप्थ की बहुत ज़रूरत है। तो डेप्थ के लिए एससीडी जो गवर्नमेंट एक उसमें कुछ दोबारा सोचे तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चीज़ है और गवर्नमेंट के लिए भी जो आगे जाके काम करना है उसके लिए भी अच्छी बात है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर जो अनिश्चितता थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत के बाद दूर हो गई है। उन्होंने कहा कि इस एग्रीमेंट से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स और इंडस्ट्री एसोसिएशंस ने इसका स्वागत किया है। एक तरफ इंडिया EU FTA हुआ, which was considered as the mother of all deals so far। इतने देश भर में दुनिया भर में उसको लेकर के पॉजिटिविटी का माहौल बना और उसके बाद में कल माननीय प्रधानमंत्री जी और अमेरिका के सम्मानीय राष्ट्रपति जी के बीच में हुई वार्ता के बाद भारत में अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर के जिस तरह का परिदृश्य बना हुआ था, जो संशय के बादल थे, एकाएक वो छटे और भारत एक बार फिर कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट की जगत में एक अपर एज लेकर के सामने आके खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से उसके चलते हुए भारत में मैन्युफैक्चरिंग की गतिविधियों को और अधिक गति भी मिलेगी, बल भी मिलेगा और अधिक स्कोप भी बढ़ेगा। लेकिन इस चुनौती और कठिनाई के पिछले दिनों में भी जिस तरह से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले उद्यमियों ने, एक्सपोर्टर्स ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर नए एवेन्यूज़ को तलाशा, उनको डेवलप किया। मैं ये मानता हूँ कि ये जो अवरोध और गतिरोध आया था, इस गतिरोध से जो हमारे लोगों की क्षमता, हौसला और उनका विंग स्पैन बढ़ा हुआ है, उसका दोहरा लाभ जो है हमको आने वाले समय में होगा। मैं देश के सभी व्यवसायियों को, व्यापारियों को, उद्यमियों को और उनके नीचे कैस्केडिंग जो फोर्सेस होती हैं, हमारी लेबर फोर्सेस, उन सबको बहुत सारी बधाई देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो टेक्सटाइल के वर्टिकल में आता है हैंडीक्राफ्ट्स का, क्योंकि मैं जोधपुर शहर से आता हूँ और जोधपुर शहर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का एक बड़ा स्टेशन है। हम लगभग साल का 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक्सपोर्ट करते हैं। मेरी अभी सभी एक्सपोर्टर से, प्रमुख लोगों से, एसोसिएट के लोगों से बातचीत हुई है। एक अद्भुत उत्साह का माहौल उनके भी ऊपर है, अत्यंत प्रसन्नता का माहौल है, जो संशय के बादल छटने के बाद में एकाएक रोशनी दिखाई दे रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स की ओर से, छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट में काम करने वाले हस्तशिल्पियों की ओर से हृदय से धन्यवाद देते हुए इस अभूतपूर्व निर्णय के लिए उनको बधाई। पटना के दीघा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में लोयोला स्कूल के पास एक घर में मास्क अपराधी ने घुसकर शंभू नाम के व्यक्ति पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया, जिसे बाद में पुलिस को सौंप दिया गया।
दीघा थाना अंतर्गत लॉयला स्कूल के सामने गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही इसमें पुलिस टीम तुरंत पहुंच गई मौके पर और दोनों ही थाने, पाटलिपुत्र दीघा थाना, दोनों की पुलिस टीम यहाँ पे पहुंची हुई है और ऐसा सूचना मिला है कि गोली चली है यहाँ पे और जो वादी हैं उनके द्वारा पकड़ लिया गया था, तो उनको नहीं लगा है, कोई चोट नहीं आया है। इसमें गोली हवा पे ही फायरिंग हो गई है। इसमें आगे पुष्टि की जा रही है, कानूनी कार्यवाही का प्रोसेस चालू कर दी है। हाँ, इनका ऐसा कहना है कि इनके ऊपर पहले से इनका कुछ विवाद चल रहा है, इससे पहले भी एक घटना ऐसी हुई थी और जो अभियुक्त है इनको भी एक अभियुक्त पकड़ा गया है और ऐसा सूचना है कि 2 लोग और हैं इसमें, उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। पहले भी जेल जा चुका है और ये जी, इनके ऊपर कानूनी कार्यवाही हुई है और जिस प्राप्त सूचना के अनुसार इनको बेल मिल गया था, तो उसके बाद इसमें और कार्यवाही करके इनके ऊपर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार संसद में राष्ट्रपति की अभिवचन पर धन्यवाद प्रस्ताव सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करेगी। वो तो अभी तो आप सोचिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव का चर्चा हो रहा है। बाकी चीज के लिए भी तो समय होता है ना। सरकार तो किसी चीज से हम भागने वाला तो है नहीं, हम तो नियम पालन करके हम सदन में आएंगे, सब हम जानकारी देंगे। किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों से इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट पर गलत जानकारी फैलाने बंद करने की अपील की। उन्होंने इसे देश के हित में एक महत्वपूर्ण और सोच समझकर किया गया समझौता बताया। वही तो कह रहा हूँ, आप डिटेल्स का इतना बड़ा अमेरिका और भारत का बीच का जो एग्रीमेंट, इतना बड़ा ट्रेड को लेकर के समझौता जो हुआ है, उसको पूरा आप अंदर देखे बिना, तथ्य को जानकारी लिए बिना भ्रम फैलाना तो ठीक नहीं है। तो मैं इसलिए कांग्रेस को कहता हूं कि बार बार आप झूठे बातों को लेकर के भ्रम फैलाना बंद करो। ये आदत सा बन गया है कांग्रेस पार्टी का। बीजेपी एमपी रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व अर्थव्यवस्था में एक उभरता हुआ सितारा बनकर सामने आ गया है। उन्होंने अमेरिका, EU, UAE, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ हुई कई ट्रेड डील्स का उल्लेख किया। क्षेत्र का एक बहुत उभरता हुआ सितारा बना है। आज देखिए, अमेरिका से भी ट्रेड डील हो गई, टैरिफ घट गया, उसके बाद न्यूजीलैंड से हुआ, ऑस्ट्रेलिया से हुआ, UAE से हुआ और तो और यूरोपियन यूनियन के सारे देशों के साथ मदर ऑफ ऑल डील हुआ। तो इसका संकेत क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बन रहा है और दुनिया भारत से जुड़ना चाहती है, दुनिया भारत से आर्थिक रिश्ते बनाना चाहती है। ये इसका कारण है। तो मोदी जी के नेतृत्व का अभिनंदन, और इन सबों से भारत की आर्थिक प्रगति होगी, मेड इन इंडिया गुड्स को दुनिया में और जगह मिलेगी। तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। अभिनंदन। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि टेक कंपनीज डेटा शेयरिंग के नाम पर नागरिकों के प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती। कोर्ट ने ये टिप्पणी मेटा और व्हाट्सएप द्वारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के 213 करोड़ रुपए से अधिक के जुर्माने के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई के दौरान की। ओडिशा हाईकोर्ट ने 2 बच्चे के नियम का उल्लंघन करने पर एक ग्राम पंचायत सदस्य की अयोग्य घोषणा को बरकरार रखा। कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताते हुए पर्यावरण को नुकसान, संसाधनों की कमी और सामाजिक दबाव का हवाला दिया। The disqualification of a Gram Panchayat member for having more than 2 children, calling population control an urgent national priority. The case involved a Panchayat member removed under Section 25(1)(v) of the Odisha Grama Panchayats Act, 1964, which disqualifies anyone with more than 2 children from holding office. The appellant argued that a protective proviso applied to him, since his 3rd and 4th children were born around the amendment period. However, the court rejected this argument, stating that the law was clear and the protection did not apply in his case. The court emphasized that population explosion causes environmental damage, resource scarcity, and social stress. It also noted that Parliament had already empowered both centre and states to frame population control policies through the 42nd constitutional amendment. अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। Apex News, India, Northeast.